आज हम बात करेंगे प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पहले एग्रीकल्चर और एंसिलरी को कवर कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम इसको स्टडी करें, हमें जानना चाहिए कि ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोग जो जीबीओ का एग्जाम देने वाले हैं, स्केल 2 और 3 का। ठीक है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक्चुअली गाइडलाइन पीओ के एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, और इस बात की कोई देयर इज नथिंग लाइक गारंटी दैट इट वोंट बी आस्क्ड, बिकॉज दिस इज जनरल कॉमन गाइडलाइंस एंड पब्लिकली अवेलेबल। दिस गाइडलाइंस पीओ एग्जाम में इसलिए नहीं पूछा जाता, जनरली दे नो दैट दीज आर नॉट एक्सपीरियंस्ड बैंकर, दे तो उसमें इसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बट दूसरा, अगर आप प्रमोशन एग्जाम दे रहे हो बैंक के, देन इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रमोशन एग्जाम जो लोग दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आरआरबी के अगर आप एग्जाम दे रहे हो या आगे देने वाले हो आरआरबी स्केल 2 और 3 का, देन दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अभी एसबीआई की वैकेंसी आई है, लेकिन उसमें ऐसा क्रेडिट जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो एक कॉमन आप व्यू ये मान सकते हो कि whenever you are attending the examination where the experience is asked in a banking organization, it is very much of importance of this topic that you will be going to through and to get these type of questions in examination when these are related from private sector. Okay, now let's move towards studying better rather than talking only. This is a part second of housing and education. I already said that you can learn this about me. I am presently working as a senior manager in a treasury department of a public sector bank. This is a little bit of more exhaustive information about me regarding my educational qualifications and what other certifications I have. There are a number of 3 more certifications here I didn't mention. Later I will mention. Hmm? And this is the channel where I teach you people, and you can subscribe it, like it if you find it useful to you. Now we will be moving towards priority sector. First we will go through priority sector under housing, and then we will move towards education. Okay. इस टॉपिक को पढ़ने के बाद you will be able to answer all the questions related to priority sector when it is concerned about the housing and education. You need not to go through any other resources. ये खुद ही मैंने बहुत एग्जॉस्टिव मैनर में बनाया हुआ है, और सब कुछ इसके अंदर ही है। यू नीड नॉट टू रिफर एनी अदर सोर्सेस। आप जो अदर सोर्सेस में अगर रिफर करते भी हो तो द सेम थिंग यू विल गेट हियर, देयर इज नथिंग। हाँ, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है या को कभी पूछा ही नहीं जाएगा, वो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है, बट उसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कहीं दिया हुआ है। आई डिडेंट गिवन एनी इम्पोर्टेंस ऑफ सच to such points or such things. Our aim is to get selected. Okay. तो दूसरा एक चीज और आपको बता दूं इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। एवरीवन इज बिकमिंग लाइक अ टीचर। ओके, बट मैं ये कहता हूँ कि भाई टीचर बन रहे हो तो बच्चों को ये बताओ कि वो किस तरह से सेलेक्ट होंगे, रेदर देन टू सो। अभी वो ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो it will never come in examination, or you don't have enough time for any exam. Hardly you have 2 to 3 months for any exam. In 2 to 3 months you are going to do PhD. Okay, then you will always be doing like a PhD only. You won't be selected. In this way you are studying. Be very selective in study, and study only the topics which are relevant for the exam,
rather than going here and there and searching everything and collecting the PDFs. Whatever PDFs I have shared in the group, whatever uh, related to RBI circulars, etc., that's are enough. If you complete this, then only go to others. If you are not still not completed this only and you are still searching for another resources, then you are just collecting the resources and you are not doing anything for your selection. Okay, better. And now, what is priority sector? I already told you in part 1. Historical review, I already said कि हिस्टोरिकल रिव्यू में कब आया प्रियोरिटी सेक्टर, कब मोरारजी देसाई के बारे में बताया, और 1966 में भी बताया जब ये चीज़ फील की गई कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऐसे एरिया जहाँ पे क्रेडिट ट्रस्ट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जो ए मास ए पीपल, पूरे लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है। तो ये दोबारा बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि कौन कौन से सेक्टर प्रियोरिटी सेक्टर में आते हैं, और उसमें ऑप्शन दे देगा, फिर आपको टिक करना रहेगा कि कौन सा, वेदर इट कम्स इन प्रियोरिटी सेक्टर और नॉट, वेदर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, हिरोशिमा ये फर्स्ट में ही बता दिया है, इससे याद कर लो। एस से हाउसिंग एजुकेशन, ठीक है। आर से रिन्यूएबल एनर्जी, ओ अदर्स, इसमें एस एच जी, जेएलजी और अदर्स ग्रुप्स हैं, आर्टिसंस को देते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी देते हैं। वैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज तो एमएसएमई में भी आ जाता है। ठीक है, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये एमएसएमई, एंड दिस इज एग्रीकल्चर। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि कितने सेक्टर्स आते हैं प्रियोरिटी सेक्टर में। ठीक, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स, ओके। ये शॉर्टकट टू रिमेम्बर पार्ट 1 में डिस्कस है, मैंने फिर अभी भी बता दिया है। जो लोग इसको देख रहे हैं इससे पहले उन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है। ठीक, दूसरा, ग्रुप में पीडीएफ अवेलेबल कर दी जाएगी जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, फर्स्ट जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप का ही है, आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक टेलीग्राम ओपन हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा। अगर आप वैसे भी नहीं कर सकते हो तो आप अगर टेलीग्राम इंस्टॉल किए हो तो उसके सर्च फील्ड में टाइप करो @ और सब स्मॉल में टाइप करना है, एग्जाम जोन 247। ठीक है, तो डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट खुलेगा आपको, मेरा यही, दिस इज द यूजर नेम। तो इस तरह से आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर टू बी इन ग्रुप, और फिर एनी सजेशंस यू नीड। ओके, अभी हम स्टडी कैसे करेंगे, प्रियोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस क्या है हाउसिंग की, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। एक्चुअली ये दोनों कंबाइंड ही हैं क्योंकि आरबीआई की ही इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस के लिए हैं। मार्जिन और कोलेटरल का क्या रिक्वायरमेंट है, एलटीवी रेशियो, ठीक है। क्या है एलटीवी रेशियो, एक्चुअली इस पीडीएफ में नहीं बताया क्योंकि एलटीवी रेशियो और रिस्क रिस्क वेट ये अलग से मैं शेयर करूंगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एलटीवी रेशियो पूछा जा सकता है, एलटीवी रेशियो हाउसिंग का ही नहीं गोल्ड का भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रिलेटेड हैं हाउसिंग से उसकी बात करेंगे। ठीक, अब आते हैं हाउसिंग लोन का फाइनेंस कैसे होता है। जो क्रेडिट में वो जानते हैं कि एक डायरेक्ट फाइनेंस होता है, इनडायरेक्ट फाइनेंस। इनडायरेक्ट फाइनेंस का मतलब, डायरेक्ट फाइनेंस का मतलब क्या है कि जैसे ये बैंक है, ये बंदा है, ये बैंक में गया और इसने बैंक से लोन ले लिया, दिस इज डायरेक्ट फाइनेंस। ठीक है, अभी देखो छोटी छोटी एनबीएफसीज आ गई हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो बैंक उनको पैसा दे देता है। ठीक है, बैंक ने किसी एनबीएफसी को पैसा दिया और उसने किसी बंदे को लोन दे दिया। ठीक है, अब ये बताओ, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंस। ठीक है, अच्छा, इनडायरेक्ट फाइनेंस केवल हाउसिंग में ही नहीं हो सकता, कुछ भी कर सकते हो आप, पर्सनल लोन चाहे बैंक से ले लो, एनबीएफसी से ले लो। ठीक है, तो अभी देखो आपका घाटा किधर है, ज्यादा लॉस किधर होगा, अगर आप एनबीएफसी से लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बैंक आपको 8% पे दे रहा है, ठीक है, तो एनबीएफसी को भी चलो कुछ कम पे दे रहा है, सपोज 8 पे ही दे रहा है, मान लो, कम क्यों देगा, 8 पे इसको दे दिया, तो अगर ये अभी आपको इंटर लोन देगा तो ये 8 से ज्यादा पे देगा ना। और एनबीएफसी कहीं कहीं किसी किसी पर्सनल लोन में तो 18 to 24% तक चली जाती हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे, इसके नाम पे बस आपको पैसा जाता रहता है। तो बेटर अवॉइड टेकिंग लोन्स फ्रॉम एनबीएफसी, इफ अवेलेबल देन टेक फ्रॉम बैंक्स।
ओके, द हाउसिंग लोन अंडर प्रियोरिटी सेक्टर कैन बी फाइनेंस्ड इन एनी ऑफ द टू वेज, कैसे भी दे सकते हो, ऐसा कोई गाइडलाइन में नहीं है कि आप इनडायरेक्ट फाइनेंस नहीं दे सकते हाउसिंग लोन में। देयर इज नॉट एनी अपर कैप फॉर हाउसिंग लोन्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख 20 लाख की लोन, हाउसिंग लोन में अपर कैप नहीं है, बट प्रियोरिटी सेक्टर में अपर कैप है। बात ध्यान से सुनो, जान लो, कभी अगर ये एग्जाम में आ गया कि, तो इस पे मत जाना कि सर ने बताया था अपर कैप नहीं है। अपर कैप देने के लिए नहीं है, कोई 1 करोड़ का भी लोन ले सकता है हाउसिंग, 10-10 करोड़ के फ्लैट है वो सब लोन पे ले रहे हैं, तो हाउसिंग में अपर कैप नहीं है। बट उतना बड़ा लोन प्रियोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा। क्यों? प्रियोरिटी सेक्टर का मतलब ही होता है कि जो ज्यादातर नंबर ऑफ पीपल्स जिस कैटेगरी में आते हो, सभी लोग 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं क्या? नहीं, इसलिए उस पे कैप डिफाइंड है। ठीक है, आगे बताते हैं उस पे कितना कैप है, क्योंकि इसी प्रेजेंटेशन में ही है उसका। बिफोर वी मूव फर्दर, नोट वन थिंग दैट, ये नोट कर लो आप, ये जरूरी है। लोन गिवन टू स्टाफ मेंबर हाउसिंग लोन, देखो बैंक अपने स्टाफ को सिंपल इंटरेस्ट पे लोन देता है हाउसिंग वाला। ठीक है, तो जो लोन हाउसिंग का बैंक स्टाफ को देता है वो प्रियोरिटी सेक्टर में नहीं आता है। ठीक है, उसको प्रियोरिटी सेक्टर में नहीं बोलेंगे। स्टाफ लोन्स जो हैं वो प्रियोरिटी सेक्टर में नहीं आते हैं। गिवन, प्रोवाइडेड, क्या? कि वो स्टाफ स्कीम में हो। ऐसा नहीं है कि स्टाफ नहीं ले सकता, अगर स्टाफ प्रियोरिटी सेक्टर में लेना चाहता है तो वो पब्लिक कैटेगरी में ले लोन। पब्लिक कैटेगरी में वो जो लोन लेगा, जैसे मान लो एसबीआई ले लो, एसबीआई है, एसबीआई के स्टाफ है। ठीक है, अब इसको इसने लोन दिया स्टाफ स्कीम में, तब ये प्रियोरिटी में नहीं है। लेकिन अगर यही एम्प्लॉय बोले कि मुझे स्टाफ स्कीम में नहीं लेना है, मुझे पब्लिक स्कीम में लेना है, तो मुझे 6% पे मत दो सिंपल इंटरेस्ट, मुझे तुम 8.75 कंपाउंड पे दे दो, उस पे दिया तो ये प्रियोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तब ये प्रियोरिटी सेक्टर में रहेगा। होप योर कंफ्यूजन आर क्लियर नाउ। नेक्स्ट, बैंक लोन्स टू हाउसिंग सेक्टर एज पर लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बिलो आर एलिजिबल फॉर प्रियोरिटी सेक्टर। ठीक, लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बिलो मतलब इस लिमिट के अंदर इंडिविजुअल्स को अगर 35 लाख इन मेट्रोपॉलिटन सीरीज, मेट्रोपॉलिटन सेंटर वो होते हैं जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। ठीक है, एंड अप टू 25 लाख इन अदर सेंटर्स, मेट्रोपॉलिटन के अलावा। ठीक है, तो जहां पर 35 है, 35 लाख का लोन दे सकते हैं, याद रख लो लोन, ये लोन अमाउंट है। और ये 25 लाख जो है ये भी लोन अमाउंट है। अच्छा ये बताओ, जितना अमाउंट का लोन लेता है आदमी, क्या घर उतने का ही होता है क्या? 25 लाख का वो लोन लिया है तो 10-5 लाख अपने पास से भी लगाएगा, उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा होगी ना। उसमें भी कैटेगरी है कि लोन तो 35 लाख तक का ही है, लेकिन इसकी वैल्यू मकान की टोटल कीमत 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी 1 करोड़ का अगर फ्लैट है, ठीक है, 1 करोड़ का फ्लैट है, लेकिन तुमने लोन 35 लाख से लिया। ठीक है, और बाकी का मान लो 65 लाख वो अपने पास से लगाया पैसे, तो ये प्रियोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर कट समझो। दूसरा, अगर मेट्रोपॉलिटन सेंटर नहीं है तो इसकी घर की जो कीमत है, द वैल्यू ऑफ ड्वेलिंग यूनिट शुड नॉट एक्सीड 30 लाख। ओके, फिर से देख लो, मेट्रोपॉलिटन सेंटर पे 35 लाख, अदर सेंटर पे 25 लाख तक का लोन अमाउंट, लोन अमाउंट प्रियोरिटी सेक्टर में आता है। लेकिन उसमें क्या है, घर की जो हाउस की वैल्यू है वो मेट्रोपॉलिटन के केस में 45 लाख और अदर सेंटर पे 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाउसिंग लोन्स विच आर बैक्ड बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड, अच्छा वो अगर 10 लाख, अगर कोई भी हाउसिंग कंपनी हाउसिंग लोन जो दे रही है उसके लिए वो बॉन्ड इशू करती है, मान लो बॉन्ड इशू करके कैपिटल उठाती है, तो वो कितना भी अमाउंट का हो ये प्रियोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा।
जो लोग बैंक का एग्जाम भी ये जीबीओ वाला देने वाले हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर ये नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। जो बैंक का प्रमोशन एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रमोशन एग्जाम में ऐसे टेढ़े क्वेश्चन ही आते हैं। आप पढ़ के जाओगे कुछ और आ जाएगा उसी से रिलेटेड दूसरा। अब देखो, रिपेयर करा रहे हो घर को, मतलब घर का मान लो कॉस्ट उतना ही है, लेकिन अभी आपको लोन नहीं लेना है, आपको रिपेयर कराना है। तो लोन्स अप टू 10 लाख मेट्रोपॉलिटन में और 6 लाख अदर में, फॉर रिपेयर टू डैमेज्ड ड्वेलिंग यूनिट्स। ओके। अगर घर खराब है तो 10 लाख का लोन अगर घर को आपको सुधारने के लिए दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन अगर है वो एरिया तो। और अगर दूसरा एरिया है तो 6 लाख तक का लोन जो है वो आपका प्रियोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। नाउ एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। हाउसिंग लोन टू इंडिविजुअल अप टू 35 एंड अदर सेंटर, तो वो वही एक्सप्लेनेशन है जो अभी मैंने बताया है, 45 लाख और 30 लाख होना चाहिए, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। अब क्या है कि पहले ऐसा था कि ये आरआरबीज स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब ये आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसको दे सकते हैं। अच्छा, बैंक लोन्स टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अब ये देखो ये क्या है, इनडायरेक्ट फाइनेंस अभी बताया था ना। इनडायरेक्ट फाइनेंस आपको वो वही है कि बैंक अगर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, बैंक लोन दिया किसको, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, तो अप टू 20 लाख फॉर इंडिविजुअल। सीधे सीधे इसमें 35 लाख, 45, 30 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्लियर कट है कि 20 लाख फॉर इंडिविजुअल बारोवर, चाहे वो परचेज हो, कंस्ट्रक्शन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, या रिहेबिलिटेशन प्रोडक्ट के लिए दे रहा हो, मान लो कोई झुग्गी झोपड़ी हटा करके फिर से बसाई जा रही है, तो वहां पर वो लिमिट 20 लाख है। ठीक। बैंक लोन्स टू हाउसिंग कंपनीज फॉर ऑन लेंडिंग, ठीक है। अच्छा, सिंपल यही चीज है फिर ये भी, लेकिन क्या है, आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑन लेंडिंग के लिए, या लोकल एरिया बैंक जो है, एलएबी का मतलब होता है लोकल एरिया बैंक, ये जो है नहीं दे सकते। ठीक है। चलो, पहला लोकल एरिया बैंक कौन सा था ये कमेंट करके बताना। हिंट दे दे रहा हूँ, पंजाब। ठीक। पंजाब से और कुछ मत समझना। ठीक है, चलो हिंट भी मत समझो, तुम अपने मन से बताओ भाई पहला लोकल एरिया बैंक कौन था। ठीक, कमेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में। चलो ये, और ये भी है ना कि ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दे रहे हो तो उसमें ये तो नहीं आएगा पहला ये बैंक कौन सा था, तो ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। किस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ये नहीं पढ़ना है। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक की कौन सी टैगलाइन है ये नहीं पढ़ना है। जो लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम दे रहे हैं ये सब चीजें ना पढ़ो, नहीं आएगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो अपना टाइम किल कर रहे हो, या कोई यूट्यूब पे ज्ञान बता रहा है तो उससे ज्ञान कम लो, अपना सेलेक्टिव स्टडी करो, नहीं तो फिर अगले साल भी आपको ज्ञान लेना पड़ेगा और वो आपको भारी पड़ेगा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये वही है, एग्रीगेट लिमिट ऑफ 20 लाख पर बार अभी बताया, तो वो ऑन लेंडिंग के ही लिए है। आगे चलते हैं। ये है, पहले पार्ट में थोड़ा सा बच गया था, वो मैंने इसमें डाल दिया क्या, बैंक लोन्स टू एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग, एग्रीकल्चर भी इसमें है इसलिए डाल दिया था। तो एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को जो बैंक लोन देता है, ठीक है, तो अगर एग्री के अंडर दे रहा है तो 10 लाख तक का पर बारोवर लिमिट है। देख लो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को दे रहा है तो 20 लाख लिमिट है, लेकिन अगर एग्री के लिए दे रहा है तो 10 लाख का लिमिट है। एग्री एक्चुअली टर्म लोन में देते हैं, टर्म लेंडिंग कंपोनेंट देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है। टर्म लेंडिंग कंपोनेंट मतलब समझ रहे हो, अपना ट्रैक्टर खरीद रहा है या कोई मशीनरी खरीद रहा है, वो टर्म लोन में, टर्म लेंडिंग में आता है। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को अगर दे रहा है एनबीएफसी के थ्रू तो 20 लाख दे सकता है। समझ में आया। तो ऑन लेंडिंग के लिए नोट कर लो, लिख लो, अगर बैंक
ऑन लेंडिंग करता है। ऑन लेंडिंग का मतलब ये हुआ कि बैंक किसी और दूसरे इंस्टीट्यूट को लोन दे रहा है जो कि आगे उसी पैसे को कई सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके लोन देगा। ठीक है, तो उसके लिए 20 लाख की लिमिट है। हाउसिंग और एमएसएमई के लिए अगर एग्री कंपोनेंट में दे रहा है, एग्रीकल्चर काम के लिए दे रहा है टर्म लोन, तो 10 लाख पर इंडिविजुअल बारोवर की लिमिट है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। समझ में आ रहा हो तो इसे शेयर करो। अभी पढ़ लो, अभी ये फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आगे भी फ्री में ही पढ़ाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे, अब प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारे बच्चों के पास पैसा नहीं है और उनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और लेकिन वो कई जगह पैसा देके फंस भी चुके हैं। ठीक है, वो बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है उनका। तो ये चीजें अवेलेबल रहेगी तो ये मास ए नंबर ऑफ, ये एजुकेशन का प्रियोरिटी सेक्टर है मेरा। ठीक है, पूरा मास इससे बेनिफिटेड होगा। ठीक है, माई फी इज द ओनली दैट, इफ यू लाइक इट, इफ यू शेयर इट, डिस्ट्रीब्यूट एंड ग्रो इट, दैट विल बी एनफ। अभी मैं इसको फीस का क्या है ना आपकी, मैं क्या करूंगा बच्चों से फीस लेके। आई एम वर्किंग, आई एम गेटिंग एनफ सैलरी। स्केल 3 पब्लिक सेक्टर बैंक में हो गया है। ठीक है, मुझे 13 ईयर्स से ज़्यादा हो गया बैंक में। अगर मैं पूरे बैंकिंग करियर की बात करूं तो 3 बैंक्स मैंने स्विच किया है, तो उसमें 13 ईयर्स का टोटल करियर है मेरा। अभी ये बताओ, तो आप समझ सकते हो ना कि मुझे एनफ सैलरी तो मिल रही है। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे, आप सब लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सेलेक्ट हो, दैट्स इनफ, दैट्स गुड। इट साउंड्स मी गुड, इट 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 गेट्स मी फील मोर देन व्हाट कैन आई चार्ज यू। Okay, the better thing is that best is your comments, and if there is some improvement required, you could just comment or a YouTube and share this. One thing that is PDF को कहीं भी शेयर मत करो। जो ग्रुप में शेयर है तब तक मत शेयर करो जब तक एग्जाम है, उसके बाद शेयर कर दो। क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एवरी वन विल बी अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन आफ्टर स्टडिंग दिस, और लोग पढ़ेगा, सब लोग अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, अब अगर 1000 लोगों ने भी अटेम्प्ट कर दिया तो आप 1000 लोगों से के या तो बराबर में पहुंच जाओगे या पीछे रहोगे। तो बेटर है, मैं प्रमोशन करना होता तो मैं खुद कहता कि तुम मेरा पीडीएफ शेयर करो। नहीं, आप पढ़ाई करो आराम से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बातचीत बंद करते हैं। क्या होगा अगर नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर टारगेट? अगर प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट अचीव नहीं होता, तो जितना, मान लो आपका 40 लाख रुपए अचीव नहीं हुआ, बच गया टारगेट में से। ठीक है, तो जितना शॉर्टफॉल अमाउंट है उतना आपको नाबार्ड के आरआईडीएफ में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे बड़ा लॉस ये है कि इस पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता आपको, बस वो फंड जमा कर देना है आपको। और अगर इंटरेस्ट मिलता भी है तो आप मान लो 2.5% इंटरेस्ट पा रहे हो, 3% वहां पे रख के, और हाउसिंग लोन पे आप 8.75 पाते हैं अभी कम से कम, तो आपका कितना लॉस है आप ये देखो। ठीक है, इस्टेब्लिश विद नाबार्ड एंड अदर, विद नाबार्ड एंड हाउसिंग सीडबीज के लिए। अभी क्या करोगे, जब उस पे बैंक पैसा रखेगी तो ये लोग डायरेक्ट फाइनेंस फिर करते हैं, रिफाइनेंस करते हैं, तो वो एक तरह से आप उसको इनडायरेक्टली फाइनेंस कर देते हो ये। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, इसको लाइट मत लो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रियोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल होने पर क्या होगा, वो क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे आएगा, देखो सुनो। बैंक, if the bank is having shortfall in priority sector lending targets, then first bank have to deposit the fund to RBI. Second, the bank have to contribute the shortfall amount to NABARD. Bank have to contribute the shortfall amount to Rural Infrastructure Development Fund or any such fund established with NABARD or सिडबी और एनएचबी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो नाबार्ड बोला है सीधे, वो जनरली नहीं आता, क्योंकि नाबार्ड के साथ
वो नाबार्ड को नहीं होता। नाबार्ड का जो फंड एक क्रिएट होता है, एक अकाउंट क्रिएट होता है, उसमें जमा करना पड़ता है। ठीक है। आरबीआई के पास तो जमा ही नहीं करना है, क्योंकि आरबीआई ऐसा कोई फंड नहीं रखता है, क्योंकि आरबीआई जो फंड आप जमा करते हो उससे क्रेडिट देना है, तो आरबीआई किसी को लोन तो देता नहीं है, तो इसलिए ये अलग अलग नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी में रखाता है। ठीक है। अच्छा देखो, एक एक जो है बहुत दिन से क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है, ये महाराष्ट्र स्केल 2 स्केल 3 में हर बार सिडबी का हेड ऑफिस किधर है, ये पूछा गया है। तो बैंक का हेड ऑफिस आपको नहीं पढ़ना, मैं बताया है, लेकिन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, सिडबी है, तो ये किसका सब्सिडरी है, किसके ओनरशिप में है, और कहाँ पर इसका हेड ऑफिस है, या कितनी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस तो जनरली नहीं पूछता है, बट कहाँ पे हेड ऑफिस है ये आपको पता है। लेकिन अब ये नहीं है कि आप इसमें याद करो कि पीएनबी का कहाँ है, बड़ौदा का कहाँ है, ठीक है, आईओबी का कहाँ है, महाराष्ट्र बैंक का कहाँ है। नो, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका हाउसिंग का सेक्शन, खत्म हो गया प्रायोरिटी सेक्टर का। ठीक है। अब आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन में। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसमें केवल यही लाइन है बस। लोन टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पज पहले 10 लाख था, ठीक है, अभी 20 लाख है। एजुकेशनल पर्पज के लिए इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज मतलब रेगुलर कोर्सेज नहीं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं। ठीक है। उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल कर लिया गया है, नॉट एक्सीडिंग ₹20 लाख। ठीक है। तो आपको बस यही इतना जानना है, नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। 20 लाख से ज्यादा नहीं होगा, और 20 लाख तक का प्रायोरिटी सेक्टर में। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक केवल 20 लाख का ही लोन दे सकता है, बैंक 1 करोड़ का भी लोन दे सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सैंक्शन अमाउंट। मतलब अगर आपने 80 लाख का लोन दे दिया, तो इसमें से 20 लाख जो है वो प्रियोरिटी में चला गया, 60 लाख नॉन प्रियोरिटी में चला गया। लेकिन यही अगर हाउसिंग में 35 लाख से था, और अगर आपने 40 लाख दे दिया, तो वो पूरा ही चला गया बेकार, सैंक्शन अमाउंट। इसमें तो 35 लाख मैक्सिमम ही है। अब समझ में आ गया ना। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है पता है? दिस देखो, लिखा भी है इसमें, वनली गाइडलाइन ऑन एजुकेशन लोन बार आरबीआई। आरबीआई केवल उतना ही लिखा है, लेकिन क्वेश्चन किस पे आता है? बट स्टडिंग ओनली दिस वोंट हेल्प यू, बिकॉज ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन रीपेमेंट अमाउंट, मार्जिन एंड अदर गाइडलाइंस। ठीक है। तो वो क्या है? आईबीए का मॉडल लोन स्कीम जो है वो है। आईबीए का मॉडल लोन स्कीम है, ये है इंडिया का होना चाहिए। ठीक है। सिक्योर्ड एडमिशन टू हायर एजुकेशन इन। अच्छा हाँ, ये देखो, आईबीए मॉडल लोन स्कीम में इंस्ट्रक्शन है कि जो बंदा आईबीए मॉडल लोन स्कीम के थ्रू लोन ले रहा है, उसका सिलेक्शन मैनेजमेंट कोटा से नहीं होना चाहिए। ये पीजी के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते आप। कोई ना कोई एग्जाम के थ्रू आपकी रैंक आई हो तभी ले सकते हो। सही बात है, गधों को लोन देने से कोई फायदा नहीं है, खुद भी डूबेंगे, लोन का पैसा भी डूबेगा, और फिर बाद में बैंक को वापस मिलेगा भी नहीं। ठीक। चलो, इन सच केसेस बैंक विल डिसाइड टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया। हाँ, तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा लेता है तो वो क्राइटेरिया बैंक डिसाइड कर सकता है। चलो, डायरेक्ट एडमिशन भले ही ले रहा है, लेकिन पढ़ने लिखने में कैसा है, ये इसके क्राइटेरिया के लिए वो डिसाइड करता है। एक्सपेंसेस कंसीडर्ड फॉर लोन नीड नॉट स्टडी, बट बता देता हूँ। ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस, आने जाने का, कॉशन मनी, मतलब जितने भी तरह के एसोसिएटेड खर्च हैं, सभी एजुकेशनल लोन के अमाउंट में आप इंक्लूड कर सकते हो। एजुकेशनल लोन स्कीम क्या है? कॉमन टू ऑल बैंक्स जो है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने 2015 में एक नोटिफाई किया था। इसको आप इसको पढ़ लेना, जस्ट आई व्यू ले लेना, आई व्यू ले लेना। ये पूछता नहीं है जनरली, अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है। बट आई व्यू ले लोगे तो तुम्हें पता रहेगा क्या, कि ये स्कीम कौन सी है। अब हर तरह की स्कीम है, देखो, हायर एजुकेशन के लिए कौन सी स्कीम है, 1 मिनट में दिखाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है। एजु स्टूडेंट किस पर्पस के लिए ले रहा है, कहाँ से इकोनॉमिकली वीक है या कैसा है। ठीक है। अब इसमें आता है CSIS,
ये अंबेडकर का है, ये पढ़ो प्रदेश है, ठीक है। ये सेंट्रल CSIS है, शायद इसमें टाइप नहीं किया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये याद रखना है बस, 7.5 लाख, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। ये मार्जिन, और वो 7.5 लाख जो है, 4 लाख तक तो नील है। 7.5 लाख का जो स्कीम है वो IBA मॉडल लोन स्कीम नहीं है, तो बैंक अपने मन से दे सकते हैं, ठीक है। अंबेडकर और पढ़ो प्रदेश या इन सब में नीड बेस्ड फाइनेंस है, ठीक है। 4 लाख के ऊपर अगर इंडिया में पढ़ाई कर रहा है तो 5% मार्जिन, और अब्रॉड करा रहा है तो 15% मार्जिन ले सकते हैं। सिक्योरिटी में के नाम पे क्या है, फ्यूचर कहीं पे अगर वो कर रहा है नौकरी तो वहां से असाइनमेंट ले सकते हैं। असाइनमेंट मतलब वो असाइन करके दे देगा कि हमारे सैलरी से काटो, ठीक है। लोन इज, हाँ, लोन अमाउंट अप टू 7.5 लाख दे सकते हैं। नो कोलेटरल सिक्योरिटी लोन्स विल बी कवर्ड अंडर CGFSL, मतलब समझ रहे हो। जो 7.5 लाख तक के लोन आप दे रहे हो एजुकेशन में, उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बैंक मोस्टली आप देखोगे बैंक ले लेते हैं, बट जरूरत नहीं है। ये CGFSEL। अच्छा, जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं ना, उनको एक्स्ट्रा कॉशन लेने के लिए मैं मना कर रहा हूँ। देखो, अगर इसमें जरूरत नहीं है और सीधे गाइडलाइन है तो क्यों ले रहे हो? हाँ, मत लो। उसको भी परेशानी होगा, और तुम्हारा ऑडिट वाला जो आएगा वो लिख के जाएगा कि 7.5 लाख में जरूरत नहीं थी, इसने ले लिया। तुम्हें फिर एक लेटर मिलेगा कि गाइडलाइंस वायलेट किए। बैंक को बचाने के चक्कर में खुद फंसोगे, तो ये काम मत करो। चलो आओ। टेंजिबल, अगर ऊपर है 7.5 लाख से, टेंजिबल, टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, जिसको छू सकते हो, मतलब जमीन जायदाद, ठीक है। इसका 100% कम से कम कवर होना चाहिए, मतलब 7.5 लाख से ऊपर का अगर 8 लाख लोन दे रहे हो तो 8 लाख की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी इक्वेटेड इनटू मंथ अप टू मैक्सिमम 15 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है, मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड फॉर एन एजुकेशन लोन इज 15 ईयर्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड। दैट इज, कोर्स अगर 3 साल का है, 1 साल का उसमें और जोड़ लो, ये 4 ईयर का मोरेटोरियम होता है, और 15 ईयर्स का रिपेमेंट है, मतलब कितना हो गया, 19 साल। समझ में आया? तो ये आपका एजुकेशन लोन खत्म। एजुकेशन लोन में क्या आपको देखना है कि 4 लाख तक कुछ नहीं है, ठीक है। 4 लाख तक कुछ नहीं, केवल इतना ही पढ़ना है, ये बता देता हूँ फिर से। 4 लाख तक मार्जिन कुछ नहीं है। 4 लाख के ऊपर दे रहे हैं तो मार्जिन 5 से 15% तक हो सकता है। 5% हो सकता है या 15%, ऐसा नहीं 6%, ऐसा कुछ नहीं है। 5% तब होगा जब वो इंडिया में पढ़ रहा है, 15% तब होगा जब वो बाहर पढ़ रहा है। ये मार्जिन पूछ लेगा। लोन अमाउंट ये पूछेगा कब तक सिक्योरिटी का अमाउंट जरूरी नहीं, तो 7.5 लाख। अच्छा, वो बहुत सारा स्कीम जो बताया CSIS से, ये अभी पूछा नहीं गया है कभी, ठीक है, कभी नहीं पूछा गया है, बट वो पूछा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रूटीन में नहीं है। लेकिन ये चीज जानना जरूरी है कि कब तक सिक्योरिटी आपको नहीं लेना है, ठीक। अगर 7.5 लाख से ज्यादा है तो आपको 100% सिक्योरिटी लेना है, ठीक। बस ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको ये अच्छा लगा और जल्दी हम लोगों ने कवर किया तो इसको ये देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर इतना तो कर सकते हो ना। और मैं कह रहा हूँ, आप इससे खराब क्वालिटी में दूसरों से पढ़ रहे हो, इससे कम चीजें बताई जा रही हैं, और आप वहाँ पे हजारों पेमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। तो आई नीड नॉट टू से दैट आई every time I have to quote that what you are being charged other places. But just one thing I want to say, if you like it, then it is as your duty, you subscribe it first and share it maximum. Just only video, do not share PDF. Do not share PDF till your exam. After the once the exam is concluded, you easily share. That's one. Because I know क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और आप, मैं चाहता हूं कि आप टॉप मेरिट में रहे, ओके। ठीक, हैप्पी लर्निंग विद एग्जाम जोन 247। इफ
एनी गाइडेंस इज रिक्वायर्ड, आपको बता दिया हूँ कैसे करना है। टेलीग्राम में टाइप करो @examzone247, या यूट्यूब पे भी अगर ये टाइप कर दोगे हैंडल @exam जोन, सब स्मॉल में ही टाइप करना है 247, तो ये सीधे वही पेज खुलेगा। आप किसी पे कमेंट कर दो, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। एवरी कमेंट आई सी आई रिप्लाई। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ यू एंजॉय इट, डू इट एज आई गाइडेड। थैंक यू।